Yes, so sharing my experience with mirror work, when this lady who was practicing mirror work was halfway through, suddenly she couldn't see. And it was very weird because technically mirror work is supposed to be improving your health and heal you, and here she couldn't see. But she realized also was that she could see really when she would remove her glasses. You know, actually her vision had reverted back to normalcy as compared to what she earlier had. So you'll find a lot of examples on internet as well. It's a very well known work. A lot of people have used it. Also, there are a lot of free audios available to this particular book. So I'm going to. So I prepared like a small slide deck. Why have I done this? Because I just enjoy, I enjoy making presentations. So I've just made a small slide deck, which is like a condensed information on Louis Hay book of mirror work. Okay, so you will also see on the internet, you find a lot of videos around it. You will find free material as to meditations around mirror work, and please feel free to download it. It will show best results if you actually commit yourself to doing it for 21 days. It's not a very difficult exercise. It may need 1 hour per day dedicated from your side, and then you could actually be aware of the various things that are mentioned in the book. Now, like I said, this is not a book reading session, so we are not going to go through one by one on what is in each chapter. However, this is more like a condensed version of it. So, it will give you an overview as to what the book entails, and it will also give you an overview of what each chapter entails and how can you use the book like a handbook. Okay. And the session is going to be just 30 minutes. It's a short session. However, if you have questions around it, or because I've read the book a couple of times, not because I'm expert on the work, I will try to answer whatever I can. Otherwise, I'm sure you'll find the answers on the book. So, like everyone of you may know, that Louis Hale is actually a very well known healer, and she is a psychologist as well. Okay. And it is her philosophy where she says that in the infinity of life where I am, everything is perfect, whole, and complete. So she coined the term that we are actually an infinite being, and we do not need anything else from the external to complete us. Now, since I have a few people already on the call and I mentioned on the exercise, I want you to basically start all your videos. Now, this is one exercise which will really help us get into the book and understanding of the book. Can we all do that? Can we just switch on the videos? Is that okay for you all? Okay, thanks, Harmeet, Devapriya, Deepika, Harsha, Sanjay. And I promise you, this will just be for like Hema, I'm sorry, I five won't be able to minutes. because my son is working out, so No his problem. music will be a Yeah, disturbance. yeah. Yeah, no problem. I just want your videos to be on, okay? Hi, I'm so sorry. My internet bandwidth is really bad. Ah, So, okay. No problem. So all of you, I don't know how many of you tried doing the exercise that I mentioned to you. And for all those people who have actually switched on the videos, just look at yourself. Don't look at others, the other participants, but just look at yourself on the video for 4 seconds. Okay. Is it easy or is it odd? Come on, you can unmute and tell me. For me, it wasn't very comfortable. If I have to really confess, switching on the video and talking on Zoom calls, because I have a lot of work related Zoom calls, it's never comfortable looking at myself because I'm always worried. This is not looking okay. This is not okay. This is not okay. How many of you all felt uncomfortable?
If you all felt comfortable, superb. You all are already halfway into the book. And if you feel a little bit of not so comfortable feeling looking at yourself, not at others around the Zoom, then definitely we have to look at how this book will really help us through. Okay, so so what is the theme really speaking? Okay, it's very funny how my presentation keeps hanging in between. So the theme here that really lies is whatever you look at in the mirror is actually what you think about yourself. Okay. Now, whatever first thoughts that you all had, with respect to, one second. Hi, can you speak in Hindi if possible? Thank you. ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने का ट्राई करती हूँ. सो व्हाट आई सेड वाज कि आप जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं, आपको देख के पहले थॉट क्या आता है अपने बारे में, ठीक है, क्या फीलिंग आती है अपने बारे में, और बेसिकली फर्स्ट थॉट जो भी आता है वो अपने बारे में वैसा आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और मिरर आपको वही दिखाएगा जो अपने बारे में आप सोचेंगे. Okay, I'm just going to switch on the presentation. Okay, just give me a moment. Okay, so this slide says it all, right? So when you're seeing in the mirror, और जब आप मिरर में देख रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या दिखा रहा है? अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट हैं, आप स्लिम हैं और रियल में ना हो, तो यू विल परसीव योरसेल्फ, या अपने आप को आप वैसे ही समझेंगे. कभी कभी आप मिरर में देखते हैं, आपको लगता है ओ गॉड मेरी नाक थोड़ी क्रुकेड लग रही है, मेरे वेट थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है, तो इन दैट केस दिस इज व्हाट यू विल सी, दिस इज व्हाट द मिरर विल शो यू, राइट? So the theme of the book revolves around two aspects. या ये पूरी किताब का जो एसेंस है, दो एस्पेक्ट्स पे है खाली, सेल्फ लव एंड मिरर वर्क, ठीक है, खुद से प्यार करना और खुद को एक्सेप्ट करना और मिरर लेके काम करना है. तो you will see there are exercises after each theme which the author will tell you to do. हर थीम के बाद एक एक्सरसाइज है जो आपको मिरर के सामने बैठ के करना होता है, ठीक है. सो सबसे बेसिक एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिए, ये आप कॉल के बाद ट्राई कर सकते हैं, इज दैट आप मिरर के सामने बैठिए, ठीक है, और आराम से बैठिए, मिरर में अपना चेहरा देखिए एंड लुक एट योरसेल्फ इनटू द आईज. आंखों में आंखें डाल के देखिए अपने आप से मिरर में. अभी ये जो आंखों में आंखें डालना है मिरर में इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये बहुत आसान चीज नहीं है. और फिर टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली, लंबी सांस ले, और खुद को आप मिरर में देखते हुए ये 3 शब्द बोलिए कि लाइफ लव्स यू, या ये जिंदगी मुझसे प्यार करती है, ठीक है, और सांस छोड़िए. सिंपल एक्सरसाइज है, बट ट्रस्ट मी जब आप ये करेंगे इट मे नॉट सीम सो इजी, इतना इजी नहीं लगेगा. ओके, सो द जिस्ट ऑफ द बुक or the summary of the book says that the relationship with you yourself is the most powerful, okay, and whatever relationship you will have with yourself will actually influence the relationships around you and everything around you. तो आपका जो संबंध खुद के साथ है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस संबंध के बेसिस पे आपके बाकी जो रिलेशनशिप्स है वो इम्पैक्ट करेंगे,
ठीक है, और आपके लाइफ में कितने पैसे हैं, कितना खुशी है, कितनी हेल्थ है, वो सब इस पे डिपेंड करेगी कि आपका अपने आप से कितना कॉन्ग्रुएंट और कितना अच्छा रिलेशनशिप है, कितना ईज का रिलेशनशिप है. ओके, नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, जब आप ये कर रहे हैं तभी 3 चीजों का ध्यान रखना है. ए, कि बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रहा है उसका ध्यान रखना है आपको. सेकंड, अंदर फीलिंग्स क्या आ रहा है, आपका थॉट्स क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है आपका दिमाग. नाक मोटा लग रहा है, मैं तो वर्थ नहीं हूँ, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मैं गरीब हूँ. वो देखिए, कभी कभी इट्स सो फनी दैट जो हमारे थॉट्स है वो सब जगह दौड़ते हैं और खुद को ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते. इतना इट विल बी सेल्फ कंडेमिंग. ओके, एंड द थर्ड थिंग दैट यू आर गोइंग टू नोट, तीसरी चीज जो आप देखेंगे कि मेंटली आपका कमेंट्री क्या चालू है. ओके, तो बॉडी में सेंसेशंस, फीलिंग्स क्या चल रहे हैं और मेंटली आपकी कमेंट्री क्या चल रही है, ये 3 चीज आप देखेंगे. राइट, ये देखने से आपको पता चलेगा कि कितना आपका रिलेशनशिप खुद के साथ एक ईज वाला रिलेशनशिप है या उसमें कोई रुकावट नहीं है. ठीक है, तो ये जो किताब है ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है. इसमें बहुत सारी वीडियोस बने हुए हैं, बुक में लिंक्स भी है. ठीक है, अगर आपको उसको पढ़ना नहीं है, यू डोंट लाइक रीडिंग, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है जो फ्री ऑफ चार्ज है. यू जस्ट हैव टू सर्च इट, खाली ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 21 डेज का एक्सपीरियंस है और इसमें 4 चीजें हर दिन करनी है. 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो मिरर वर्क या मिरर एक्सरसाइज है, जहां आपको बात करना है खुद से, कुछ अफर्मेशंस है, कुछ अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव थॉट्स है जो खुद को बोलना है. सेकेंड है जर्नलिंग एक्सरसाइज या राइटिंग एक्सरसाइज. ओके, दैट मीन्स कि वॉट एवर यू फील, ये 3 थिंग्स जो आप ध्यान दे रहे हैं उसको आप लिख लीजिए. नाउ एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि जब आप लिखते हैं ब्रेन में नई न्यूरॉन्स बनते हैं. ठीक है, न्यू न्यूरल पाथवेज आर फॉर्म्ड व्हेन यू आर राइटिंग एनी एस्पेक्ट. इसके लिए लिखना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अफर्मेशंस लिखेंगे तो आपकी न्यूरल पाथवेज वैसे वैसे जुड़ेंगी. ठीक है, थर्ड थिंग है, बुक में एक थॉट दिया हुआ है जो आपका हार्ट थॉट है, बेसिकली जो आपका मेंटल रिकॉर्डर जैसे है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई सेल्फ, सपोज फर्स्ट चैप्टर में है, दैट इज योर हार्ट थॉट. तो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, या आप विश्वास करें या ना करें कि आप खुद से प्यार करते हैं, आप उसको बोलते रहिए 50 बार 60 बार पूरे दिन में, जब याद आए बोलिए, जब तक आप वो बिलीव करने लगे. ठीक है, एंड लास्ट एस्पेक्ट है मेडिटेशन. ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन है. सो बेसिकली आपको वो ऑडियो में बताएंगे कि कैसे क्या मेडिटेशन करना है. अगर लिखी हुई बुक आप देख रहे हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है बेसिकली. एंड हर थीम जो है, वी लुक एट द थीम्स की क्या क्या थीम्स है, उसमें मेडिटेशन जो है वो से रिलेटेड है. तो अगर फियर को रिलीज करने वाला थीम है तो मेडिटेशन भी फियर को रिलीज करने के लिए ही गाइडेड है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लुक एट द थीम्स इन शॉर्ट में हम लोग देखेंगे हर थीम का एसेंस क्या है. अभी इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है विच आई विल अर्ज दैट यू ऑल हैव टू गो बैक टू द बुक. बुक खोलिए और पढ़िए या ऑडियो बुक डाउनलोड कीजिए और उसको सुनिए जो डिटेल्स में है. ठीक है, इसमें 12 थीम है एंड उसमें से 2-3 थीम का पार्ट 1 पार्ट 2 है. तो मैंने एक्सक्लूसिव थीम्स लिया है जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि बुक क्या एंटेल करता है, क्या क्या इट विल हेल्प यू टू रिलीज. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लविंग योर सेल्फ. नाउ द फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग एनी रिलेशनशिप, जब भी आप याद कीजिए फर्स्ट टाइम आपने कोई रिलेशनशिप बनाया, या दोस्त से बनाया, हस्बैंड से बनाया, वाइफ से बनाया, किसी से भी बनाया, फर्स्ट चीज होती है उसको जानना. ठीक है, तो देयर इज अ होप दैट आई वांट टू लाइक यू, यू नो, like you meaning here you is yourself, and am I worthy of being loved. मैं डिजर्व करता हूँ क्या प्यार हो.
तो first chapter will give you exercises around how you can increase the affinity or the love for yourself. खुद की ओर आप कैसे ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं. सो आप मिरर में देख के कुछ कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे, जैसे यू नो आई वांट टू लाइक यू, या मैं आपको चाहना चाहता हूँ. अभी फर्स्ट टाइम अगर ये आपको सिली लगेगा, हंसी आएगी, आप सोचेंगे क्या बकवास है ये, तो यू नो ये silly things है बहुत. But trust me, you know, doing all these silly things will actually open a channel of conversation between you and yourself. ठीक है. It will make ये आपका और आपके बेसिकली आपके साथ जो बात करना है वो आसान करेगा, खुद से बात करना आसान करेगा. ठीक है. The second theme is make mirror your best friend. या आप मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए. सो जब भी आप घर में पास होते हैं, अगर मिरर सामने दिखता है तो खुद को एक्नॉलेज कीजिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. मिरर को देख के आप बोलिए. अगर इनिशियली आंखों में देखना डिफिकल्ट होता है, खुद की आंखों में देखना डिफिकल्ट है, तो लुक एट डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स देखिए, अपना फोरहेड देखिए, अपने चीक्स देखिए, वो इजी होगा आपके लिए ज्यादा. द थर्ड थीम इज ऑन मॉनिटरिंग सेल्फ टॉक. मतलब आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं खुद को लेके, उसको बेसिकली आप मॉनिटर करिए. ओके. सो बेसिकली यू हैव टू सी what you're talking to yourself. See, you have to understand that जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत चार्ज होता है. ओके. एंड जो भी आप बात करते हैं फाइनली आप अपनी रियलिटी में उसको एक्चुअलाइज करते हैं, या वही लाइफ जीते हैं जो आप सोचते हैं, वही थॉट्स आपकी एक्शंस में जाती है. तो आपको अवेयर रहना है और आपको मॉनिटर करना है. तो अगर आप अपने आप को नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि ये करने से ठीक नहीं होता या वो करने से ठीक नहीं होता, मैं तो हमेशा रोती हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स कभी सही नहीं होते, मेरे पास पैसे कभी नहीं होते, तो यू हैव टू मेक श्योर यू चेक ऑन दैट. उसको आप रोकिए और उसके बदले में आप पॉजिटिव चीजें बोलिए खुद को. ठीक है. आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. पीपल हु डू गार्डनिंग, जिसके घर में प्लांट्स है, आप 2 प्लांट्स को लीजिए. एक प्लांट को आप अच्छी अच्छी बातें बोलिए. ठीक है. गो नियर द प्लांट एंड टॉक गुड थिंग्स टू दैट प्लांट, वर्सेस दूसरा जो प्लांट है उसके पास जाके आप उसको गाली गलौज दीजिए, टॉक बैड थिंग्स टू द प्लांट. एंड यू विल नोटिस, आप ये देखेंगे कि इन अ मैटर ऑफ 1 week's time, you will see that the plant which you're not doing a positive talks to actually dies, you know. जो प्लांट को आप खराब बोल रहे हैं वो प्लांट एक्चुअली मुरझा जाता है. वो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो देर आर सम वर्ड्स विच यू कैन स्विच. ठीक है. अगर शुड एंड कुड, ये काम करना जरूरी ही है मेरे लिए, वर्सेस ये काम मैं कर सकती हूँ. ठीक है. तो खुद के ऊपर थोड़ा इजी हो जाइए. द फोर्थ थिंग इज लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पास्ट विच यू आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ, जो देख के आपको लगता है अरे मैंने ये बहुत बुरा किया था पास्ट में, तो वो पास्ट है, उसको आप जाने दीजिए. तो ये चैप्टर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्या एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइजेस हैं विच विल एक्चुअली हेल्प यू लेट गो ऑफ योर पास्ट. फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ कीजिए, लेट गो, जाने दीजिए एंड मूव ऑन करने के लिए एक्सरसाइजेस है. ओके. द नेक्स्ट थीम इज ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, या खुद का आत्मविश्वास जगाइए. ठीक है. जैसे देखिए, जब भी आप छोटे बच्चे थे तभी आप रोने से कभी कतराते नहीं थे, राइट. यू वुड ऑलवेज रीच आउट एंड आस्क कि मुझे ये चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खिलौना चाहिए. पर जैसे हम बड़े होते गए हम और ज्यादा फेयरफुल होते गए, मांगना अच्छी बात नहीं है ऐसे सोचते गए, कॉन्फिडेंस लो होता गया. तो अपने बेसिकली यू नो, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए. Similarly, next theme talks about release your inner critic.
a lot of us are very judgmental, you know, कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स थे मैं वैसी नहीं हूँ, पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ. तो ये जो क्रिटिसाइजिंग है उसको बंद करना चाहिए. और ये जो चैप्टर है विल टेल यू दैट, इट विल गिव यू द थीम टू एक्चुअली रिलीज दैट सेल्फ क्रिटिक inside of you. Okay, similarly there are 6 more other themes. अभी नॉर्मली क्या होता है जब हम छोटे होते हैं 5 साल तक हम लोग बहुत सारी चीजें आजू बाजू से उठाते हैं, और अगर 5 साल में कोई आपको कहेगा कि ये आप में सही नहीं है और ये ठीक नहीं है, तो वो हम लोग 5 इयर्स के टाइम में शट डाउन कर देते हैं. मतलब somebody tells you कि अरे तुम बहुत बात करते हो, तो आप बात करना कम कर देंगे. क्योंकि बचपन में क्या होता है, हमारा माँ बाप का अटेंशन के लिए हम लोग अच्छा बनना ट्राई करते हैं. वी ट्राई टू बी द गुड चाइल्ड, राइट? सो नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट यू वांट टू डू इज, जब आप बात कर रहे हैं, यू वांट टू टॉक टू योर इनर चाइल्ड. आप अपने बचपन को याद कीजिए और उससे बात कीजिए. सो समटाइम्स द चैप्टर विल आल्सो सजेस्ट, वो ऐसा भी बताएगा कि आप अपने बचपन का एक कोई फोटो लीजिए जब आप 5 साल के हैं और मिरर पे वो फोटो को चिपका दीजिए. ठीक है? और फिर वो बच्चे से आप बात कीजिए, पूछिए, उसको प्यार दीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए. ठीक है? देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लविंग योर बॉडी. ठीक है? बहुत सारी हमारी बीमारियां, हमारा बॉडी में जो पेन और एक्स है, दैट इज हमारी बॉडी का तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का. दैट इज अ वे ऑफ द बॉडी टॉकिंग टू अस. ओके, एंड सिमिलरली यू हैव अदर थिंग्स लाइक रिलीजिंग योर एंगर. अपने गुस्से को कैसे आप रिलीज करें, अपने फियर को कैसे आप रिलीज करें. ओके, एंड हाउ टू स्टार्ट योर डे भी है. मतलब आप सुबह सुबह उठते हैं तब क्या करें, ग्रैटिट्यूड कॉल करें. और बेसिकली मॉर्निंग से लेके आप क्या रिचुअल कर सकते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए. ओके, so there are more themes like that which basically tell you that you have to be full of gratitude. जो भी चीजें हैं उनका हमेशा थैंक यू कीजिए, रिसीविंग ओपन कीजिए. एंड आई विल सजेस्ट दैट ईच वन ऑफ यू, आई विल share the slides with whoever would want it, and I will suggest you all go through each chapter, because each chapter in itself will help you to release that particular theme. So relationships के लिए chapter है, stress के लिए chapter है, पैसों के लिए chapter है, prosperity, loving yourself के लिए chapter है, और thank you हमेशा gratitude में रहने के लिए chapter है. Okay, and lastly when we go and see, 12 points are given to love yourself, start loving yourself. Okay, ये 12 पॉइंट्स बुक के एंड में दिए हुए हैं जो बेसिकली आप याद रख सकते हैं या का मिरर में चिपका दीजिए प्रिंट करके. खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए, जो भी गलती हुई उसके लिए क्रिटिसाइज मत कीजिए. अपना फियर आप कैसे रिलीज कर सकते हैं. खुद के लिए आप जेंटल होइए, बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ, डोंट हेट योरसेल्फ. खुद को प्रेज कीजिए, कुछ अच्छा काम किया तो खुद को अच्छा बोलिए, एंड सपोर्ट योरसेल्फ बेसिकली. सिमिलरली जो नेगेटिव थॉट्स है वो निकाल दीजिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा खाइए, and enjoy करिए. Remember to have fun, plus love yourself in the now, and you have to continue this mirror work even after 21 days. ठीक है? Now this was a very brief session. I know probably this doesn't give you too much around the book, but it definitely will urge you to go and check the book, and I've put the book in the group, wherein if at all आपको एक चैप्टर पढ़ना है, बीच में से आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे चैप्टर में. अगर आपको लगता है आप रिलेशनशिप्स को पहले हील करना चाहते हैं तो आप वो चैप्टर पे जा सकते हैं. अगर आपको लगता है एंगर को रिलीज करना चाहते हैं, आप वो चैप्टर पे जा सकते हैं.
ठीक है. So this was a very short session, and of course I don't want to pull it and make it more lengthy because it was just a brief session for everyone. Any thoughts from anyone? Anybody has already used it? I'm sure it's a common book. People must have read it. So if not, we'll end the call. Just that I will urge all of y'all, do go online, look at certain videos that are available, see if it resonates with you. Not that Louis Hay is paying me for promoting a book. It's just been really helpful to me, and I'm sure it will be helpful to you as well. Hi, Hema. I just wanted to thank you for this, taking up Yeah, this thank you so initiative to much. spread this work. Thank you so, so much. And, from my own personal experience, I can say that my whole journey in metaphysics and spirituality began with Louise Hay. And Yes, it's made such a world of difference to me. Like, I mean, it's like there was a time when I used to literally go to bed with her and wake up with her listening to her so sweet. audios, but it Yeah, made so much of a difference. And even mirror work, has been such a great gift because from being someone who would hesitate and who would never even look at herself properly in the mirror, I have developed this amazing communion where I chat with myself and I've given a name amazing. to myself, and it's a Awesome. beautiful thing. So That's thank you so so much for amazing. spreading this. Thank you Yeah. for sharing. Come on, Thank guys. You you. all have to Thank you, at Hema. least pick up one theme and try that. If it doesn't work for you, leave the book, forget about. Okay? Yeah, yeah, absolutely. Thank Yeah. you. So thank you guys for joining on the call. It always motivates me to talk about more. Thank you so much. Thanks, Bye. Emma. Yeah, thank you. Thanks. Bye. 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 Thank you so much. Thanks.